Hello my friends, welcome to BEducare. So in this particular video, we'll talk about the TISS, the Tata Institute of Social Science, the MPH program, the Master of Public Health in Health Administration. If you want a managerial post at the government sectors, at the international organizations such as the WHO, such as the UNICEF, then guys, you can try for this particular program because health is wealth. इसके आगे कुछ नहीं guys, इसके बाद में भी कुछ नहीं है. अगर आपकी हेल्थ सही है, सब कुछ है. एंड यू ऑल्सो नो इट इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर जहां आपको इलेवेटेड ग्रोथ देखने मिलेगी, चाहे किसी भी एपिडेमिक या पेंडेमिक का कितना भी गहरा इंपैक्ट क्यों ना पड़े. गाइस, हमने देखा है कोविड-19 के बाद भी हेल्थ केयर सेक्टर एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है और यहाँ काफी सारे प्लान्स आते हैं, काफी सारी पॉलिसीज लॉन्च होते हैं, काफी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हर साल लॉन्च होते हैं. सो आखिर ये होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द पब्लिक हेल्थ, व्हाट इज एमपीएच एंड व्हाट आर द करियर प्रोस्पेक्ट्स with respect to the MPH in health administration. We'll talk in detail in this particular video. So guys, watch this particular video till the end, and if you are new to this particular channel, do subscribe the channel because here you will get lot more contents. So wanna target the MPH program, then guys you have to prepare for the testnet, and wanna crack testnet, then you can join our batches preparation to selection batch where you will get preparation for the testnet, for the extempore part, and for the personal interview. And even TISS include any selection process parameter, you will get preparation for same. So if you have any doubts and queries in your mind, call on 8383818888 and get a free counseling session from our experts. You can get all these features and you can join our classroom sessions at Ghatkopar, Dadar and Dombivli. So don't forget to download our app where you will get free resources and free mock. And for all the updates and notifications, stay tuned with our YouTube channel, guys. Let's start the video. So Tata Institute of Social Sciences having 4 different campuses, the Mumbai, Tuljapur, Guwahati and Hyderabad campus. We all know one of the most popular social science school, or we can say that the healthcare institution in India. Yes guys, 1936 में इसकी establishment हुई थी, 1944 में इसका नाम पड़ा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, एंड thereafter in 1964 it became the deemed university. So इनके सारे प्रोग्राम्स काफी अमेजिंग है, काफी यूनिक प्रोग्राम है, और आप देखोगे गाइस कि यहाँ जो फी स्ट्रक्चर है वो काफी लो फी स्ट्रक्चर है. सो ओवरऑल ये आपको देती है द बेस्ट ROI, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होगा काफी कम, लेकिन आपका जो करियर है गाइस वो काफी इमेंस होगा. काफी अच्छे पैकेजेस आपको यहाँ मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लैक्स. Yes guys, we'll talk in detail about that also. So campuses, there are 4 different campuses, we all know, the Mumbai, Tuljapur, Hyderabad and Guwahati, but the MPH program you can pursue it from the Mumbai campus only. And guys, there are lot of programs, but you can choose any 3 programs among the 2 campuses. So wanna target the best program, then guys always target the Mumbai campus. Healthcare sector में जाना है guys, go for the MHA program, go for the MPH in health administration, and thereafter go for the MPH in health policy, economic and finance, and even you can try for the social epidemiology. So overall हम सबके बारे में बात करेंगे guys. वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. So the School of Health System Studies. In the year 1989, the Department of Health System Studies started, and guys 1990 से MPH जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो चुका था, द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम. इन 1993 मास्टर इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. thereafter in 2006 the school renamed as the School of Health System Studies. thereafter in 2008 the Master of Public Health in Social Epidemiology started, and thereafter in 2010 the Master of Public Health in Health Policy, Economic and Finance, this particular program started. But here we are going to discuss the health administration program. Right guys, so it has 4 different centers: Center for Health and Social Sciences, Center for Health Policy, Planning and Management, Center for Hospital Management, and Center for Public Health. So what exactly mean by this particular public health? So guys, अगर मैं definition की बात करूं, public health is the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts and informed choices of society, organization, public and private, communities and individuals, and even education. So overall public health ये decide करता है guys the designing of the policy. जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हो रही है, वो आप डिजाइन करोगे गाइस. द प्लानिंग, द मॉनिटरिंग, द इवैल्यूएशन एंड the financial and management accounting. So guys, overall अगर मैं आपको कहूं, then एक पर्टिकुलर पॉलिसी को कैसे लॉन्च करना चाहिए, कैसे उसका चेन ऑफ फ्लो होना चाहिए, कैसे उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए इन द मार्केट, यही कहता है पब्लिक हेल्थ.
According to the WHO, public health refers to all organized measure, whether public or private, to prevent disease, promote health and prolong life among the population as whole. So overall guys, एक particular state में जो भी disease है उसे कैसे eradicate किया जाए, कैसे वहां हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया जाए और कैसे वो हेल्थ वहां स्टैब्लिश की जाए, यही होता है पब्लिक हेल्थ. सो पब्लिक हेल्थ के बारे में आप काफी कुछ देखोगे, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, आउटब्रेक्स, डिसीज प्रिवेंशन, उस डिसीज का क्योर कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी कैसी हो, एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, रिसर्च उसके ऊपर करना है, हेल्थ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं. ओवरऑल अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, देन गाइस कोविड-19 हम सब ने देखा है कि कोई भी अगर इससे इन्फेक्ट होता था तो उसे क्वारंटाइन किया जाता था, राइट. काफी सारे रिसर्च इसके ऊपर हुए, राइट. काफी सारे मेथड्स जनरेट की गई, काफी सारे पॉलिसीज इसके ऊपर लॉन्च किए गए, राइट. 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, राइट. काफी सारे स्लोगन्स हमने तैयार किए थे, राइट. और उसके बारे में काफी कुछ अवेयरनेस फैलाई गई. इवन हमारे मोबाइल फोन्स के थ्रू भी हमने काफी कुछ स्लोगन सुने जो हमारे कॉलर ट्यून्स के थ्रू आ रही थी, राइट. श्री अमिताभ बच्चन जी ने उसके लिए आवाज दी थी. सो हमने काफी कुछ सुना. ये क्या है गाइस, ये पूरा एक प्लान है, ये पॉलिसी है, ये एक हेल्थ स्कीम है जो गवर्नमेंट चला रही है. और क्यों चला रही है? ताकि इसकी जो अवेयरनेस है ओवरऑल उस पूरे स्टेट में, दैट मीन्स उस पूरे कंट्री में, या फिर मैं बात कहूं उस पूरे वर्ल्ड में, उसे स्प्रेड करना हो तो कैसे किया जाए, यही सब कुछ देखता है पब्लिक हेल्थ. सो गाइज, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करना चाहते हो, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हो जहां हेल्थ स्कीम लॉन्च किए जाए, जहां पॉलिसीज बनाई जाए, तो उसके लिए आपको एमपीएच करना होगा. दिस इज कॉल्ड द पब्लिक हेल्थ. सो गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि पब्लिक हेल्थ है यानी कि हमें हॉस्पिटल में काम करना होगा. बिल्कुल नहीं गाइस, आपको सिर्फ हॉस्पिटल में काम नहीं करना. ऑल्दो हॉस्पिटल्स यहाँ काफी सारे आएंगे एज अ रिक्रूटर्स बनके जो आपको पिक करने वाले हैं, क्योंकि काफी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं गाइस वहां पे. कुछ सब सेक्टर्स है जैसे कि हेल्थ फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, फार्मा और बायोटेक कंपनी में काम कर सकते हो, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, मेडिकल डिवाइसेस मेकिंग कंपनी में काम कर सकते हो, हेल्थ कंसल्टिंग, पेयर्स, हेल्थ टेक प्रोवाइडर्स, काफी सारे सेक्टर्स है गाइस. सो ओवरऑल करियर यहाँ इमेंस है. और उसके लिए स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि क्या मेडिकल बैकग्राउंड जरूरी है? नॉट एट ऑल गाइस. अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो दैट इज प्लस पॉइंट, लेकिन आप नहीं हो तो भी आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर्स और मास्टर डिग्री ऑफ 3 इयर्स और 4 इयर्स ड्यूरेशन. कोई भी हो, 3 इयर्स की डिग्री हो या फिर 4 इयर्स की डिग्री हो, यू आर एलिजिबल. चाहे आपने कॉमर्स किया है, चाहे आप साइंस के ग्रेजुएट हो, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो भी चलेगा, चाहे आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो भी चलेगा. लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए दैट शुड बी 15 इयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. इन केस आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो और आपकी जो इंटर्नशिप्स है वो भी चल रहे हैं, सो वो ओवरऑल आपके कंप्लीट होने चाहिए जो भी XYZ डेट रहेगी उसके हिसाब से. सो प्रीवियसली वो अक्टूबर होती थी, अब ये हो चुकी है जून मंथ. सो जून के पहले आपके जो इंटर्नशिप्स है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट भी आपके पास आ जाने चाहिए, आप एलिजिबल हो. देयर इज नो एज बार और देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी परसेंटेज, जस्ट पास. चाहे आपके 45% है, यू आर एलिजिबल. आपके 50% है, यू आर एलिजिबल. आपके 60 है, 90 है, यू आर एलिजिबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न. सो एग्जाम जो होता है गाइस ये ऑनलाइन होता है, मीडियम होता है इसका इंग्लिश. एग्जाम यूजुअली होता था पहले जैन फर्स्ट वीक में, कुछ डिले की वजह से, मेजरली कोविड की वजह से ही फेब एंड तक जाने लगा. लेकिन गाइस आप प्लान करो जैन फर्स्ट वीक को लेकर. टाइम ड्यूरेशन है 100 मिनट, 1 आवर एंड 40 मिनट्स. 100 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चंस. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेकर 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग को लेकर 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस को लेकर 40 क्वेश्चंस. ओवरऑल 100 क्वेश्चंस में से गाइस आपको एटलीस्ट 70 to 75 तक तो पहुंचना ही है. एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, दैट्स अ गुड न्यूज. लेकिन जनरल अवेयरनेस को लेकर गाइस यहां सेक्शनल कट ऑफ है. So 35%, that means 14 मार्क्स आपके होने चाहिए if you belong to the general, EWS, कश्मीरी माइग्रेंट एंड आर्म फोर्स कैंडिडेट. 12 मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, और SC/ST के लिए कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. सो ओवरऑल 70 to 75 हमें टारगेट करना है. लेकिन जो कट ऑफ जाता है गाइस, यूजुअली पहले ये कट ऑफ जाता था 63 to 65 पर, लेकिन पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से गाइस ये 57 to 60 के बीच अगर आप स्कोर लाते हो इजीली आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है. लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपका जो सेफ स्कोर आपको टारगेट करना है 70, तो एटलीस्ट आप 63 to 65 के रेंज में आ जाओ ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट मेरिट में ही हो जाए. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस. सो आफ्टर गिविंग द एग्जाम
टिस्टनेट का जो वेटेज होता है गाइज दैट इज 50% वेटेज। उसके बाद आपका होता है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑन अ गिवन पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी आपको एक टॉपिक दिया होगा उस टॉपिक पर आपको बस 1 से 2 मिनट मैक्स 2 to 3 मिनट्स आपको बोलना है। इसके लिए मिलेंगे आपको 100 मार्क्स। आउट ऑफ 100 आपका जो भी स्कोर होगा उसका 20% वेटेज यहाँ कंसिडर किया जाएगा। एंड दे आफ्टर ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। सो इंटरव्यू को लेकर अगेन 30% weightage. So overall out of these 100, merit list will be generated and according to that particular merit your selection will be done in TISS. So guys, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. You will get preparation for TISNET, for extemper and for online personal interview at B-Educare. So guys, if you have any doubts and queries in your mind, ask me on this particular number. So let's talk about the program details. So Master of Public Health, seat intake 39, duration 2 years, semester we have 4 semesters. There is rigorous field work, 3+1 internships. That is first internship to know about the urban health system and it is of 8 weeks. So students were placed in the public health department of Municipal Corporation of Greater Mumbai, one of the largest municipal corporation in India, जहां आप काफी कुछ सीखने वाले हो। ओवरऑल इनका चेन ऑफ फ्लोर कैसा है, इनके कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कैसे वहां हर कोई काम करता है। सो जो कुछ भी आपने क्लासरूम में सीखा है गाइस वो आप प्रैक्टिकली यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एंड दिस is more serious about its internship. Yes guys, क्योंकि देखो जो क्लासरूम में पढ़ा है एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकल भी करते हैं तो पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है ये बुक। लेकिन जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको काफी कुछ सीखने मिलता है। वेरियस डिपार्टमेंट्स, वो जो लेजेंड्स है उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। सो काफी कुछ वहां सीखते हो। सेकंड इंटर्नशिप जो आपकी होती है ये यूजुअली होती है एक एनजीओ में, रूरल एरिया में। वहां वो कैसे काम करता है, स्टूडेंट्स वर प्लेस इन द डिफरेंट नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द इंडिया, जहां आप सीखने वाले हो कि वो एनजीओ कैसे सर्वाइव कर पाता है उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में, क्या वहां से हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, कैसे वहां प्रोसेस हो रहा है। थर्ड इंटर्नशिप जो होगी आपकी गाइस रूरल हेल्थ सिस्टम में होगी फॉर द 4 वीक्स, एक्सपोजर टू द रूरल एरियाज एंड हेल्थ सेक्टर। और जो फाइनल गाइस ये जो आपकी इंटर्नशिप होने वाली है दैट इज द समर इंटर्नशिप। और समर इंटर्नशिप में आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इवन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में प्लेस किए जाओगे, जहां आप काफी कुछ सीखने वाले हो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स क्या होती है। ठीक है, वेरियस CSR प्रोजेक्ट्स भी आपको दिए जा सकते हैं जहां आप काम करने वाले हो। और उसके बाद गाइज रिसर्च डिजिटेशन होता है, रिसर्च वर्क जो कि होता है मैंडेटरी। सो आपको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना होता है। ओवरऑल जो ड्यूरेशन है गाइज 2 इयर्स का, इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा फाउंडेशन कोर्स सीखोगे। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपकी जो कोर स्टडी रहेगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। यू विल लर्न अबाउट द डिजाइनिंग, प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, कैसे वो लॉन्च हुए गाइज, वो काफी कुछ आप यहां सीखने वाले हो। सो ओवरऑल गाइज बस आप ये समझ लो कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की है अगर आप MPH कर रहे हो, क्योंकि आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाने वाले हो। और मोस्टली जो हेल्थ केयर सेक्टर्स है वो रन किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर NGO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सो आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह भी ट्रीट होने वाले हो और प्लस सरकारी नौकरी जैसी आपकी फीलिंग होने वाली है गाइज। सो व्हाई इट इज नेसेसरी? Field work provides you the varied industry exposure, opportunity to apply concept at the workplace, live experience आपको मिलता है और challenging projects को हैंडल करने को भी आपको मिलता है। क्योंकि आप अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हो इन TISS being a TCN, लेकिन आप एक्चुअल में इन ऑर्गेनाइजेशन में काफी कुछ सीखते हो। सो गाइज ओवरऑल प्रोग्राम तो काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर, आइदर इट्स वर्थ इट और नॉट। यार फीस स्ट्रक्चर तो देखो आप, 2 साल की जो फीस है गाइज आपकी वो है ओनली 1,39,000। या 2 इयर्स की फीस है। सरप्राइज हूं मैं कि भाई फीस इतनी कम क्यों है। भाई ये टाटा इंस्टीट्यूट है, यहाँ आपको बेस्ट ROI मिलने वाली, यहाँ आपकी फीस कम होने वाली है, प्लेसमेंट का वजन काफी ज्यादा होने वाला है गाइस। प्लेसमेंट से अमेजिंग है। हालांकि MPH को लेकर जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो आउट नहीं होता, लेकिन गाइस आप काम कहां कर रहे हो पता है? WHO में, यूनिसेफ में, वर्ल्ड के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन में, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के टॉप हॉस्पिटल में। क्यों आपको सैलरी कोई कम देगा? भाई आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, जरूरत है गाइस लीडरशिप की, जरूरत है वैसे मैनेजर्स की जो हेल्थ केयर सेक्टर को काफी ऊंचाइयों तक लेकर जाए। और ये गाइस रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आपका करियर यहां सेट है, बस इमेंस है, इतना समझ लो। सो ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है गाइस। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो फीस है 51,500, सेकंड सेमेस्टर की फीस है 27,500, थर्ड सेमेस्टर 39,000, फोर्थ सेमेस्टर 21,000।
ओवरऑल जो फीस है गाइज 1,39,000 ओनली. एंड वेयर एग्जैक्टली यू विल वर्क? WHO, UNICEF, Ministry of Health, National Health Schemes, State Health Schemes, NGOs, corporate hospitals, and even health insurers, health research organization, pharmaceutical companies, consultancy firm, insurance company, IT and ITs, काफी जगह आप काम कर सकते हो गाइज. ओवरऑल अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, देखो गाइज यहाँ मैंने लिस्टेड की है कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं ना, WHO, जॉन हॉपकिंस, यूनिसेफ, UNFPA, कोलंबिया ग्लोबल सेंटर्स, फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल, साइट सेवर इंटरनेशनल्स. और ये आपको क्या कम पैकेज देने वाले गाइस? जो हाईएस्ट पैकेज है आप इजीली यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 to 21 लाख पर एनम. गाइस अगर मैं सिर्फ एवरेज पैकेज की भी बात करूं, देन आप 12 to 15 लाख पर एनम का पैकेज यहाँ इजीली ग्रैब कर सकते हो इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल इन यू. एंड ऑब्वियसली गाइज आप में वो है, क्योंकि आप प्लेस किए जाओगे इन टॉप गवर्नमेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन टॉप हॉस्पिटल्स, इन टॉप IT एंड कंसल्टेंसी फर्म्स. TCS यार 15 से 20 लाख का तो पैकेज यू ही दे देता है. इन्फोसिस, विप्रो, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, मेरा डॉक्टर, GCV लाइफ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, BAF, कैथोलिक रिलीफ रिसर्च, आगा खान फाउंडेशन, कुछ टॉप फाउंडेशन है वहां भी आपको काम करने का मौका मिलेगा. केयर इंडिया, नाको, NRHM, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, संबोधि रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ICICI लॉम्बार्ड में काम करने को मौका मिलेगा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल्स, अदर सेक्टर, जॉनसन एंड जॉनसन, आईगेट पटनी कंप्यूटर सिस्टम लिमिटेड, रिलायंस फाउंडेशन, अमेरी केयर्स इंडिया फाउंडेशन, इमर्जेंट मेडिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. गाइस आपका करियर ओवरऑल सेट है भाई. हेल्थ केयर सेक्टर में हो, ये पैकेज तो कुछ भी नहीं है. ये तो बस स्टार्टिंग रेंज में आपको बता रहा हूं. आप जब एक्सपीरियंस ग्रैब करोगे ना गाइस इस पर्टिकुलर फील्ड में 1 or 2 years का, बस ये जो पैकेज है काफी हद तक बढ़ जाएगा. यू विल फाइंड एलिवेटेड ग्रोथ जैसे ये हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा है. सो ओवरऑल गाइस लाइफ सेट है. प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में चिंता ना करो, फी स्ट्रक्चर के बारे में चिंता ना करो. किसी भी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन फील्ड से आप हो, wanna join on a managerial level in all these top organization, then guys MPH Health Administration is right choice for you. So let's start preparation with us for the testnet, for the extemporary part and for the personal interview. Join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation, and in case you are Pan India student, you can call on 8383818888 and interact live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and follow us on Telegram, YouTube, Facebook and Instagram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.